سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے تو نجدیوں کا وہابیوں کا تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے سلام کا جواب صرف وفاداران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں۔ تو میرے بھائیوں، سنی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ جو اجگر دیوبندی ہے یہ حافظ ہے، یہ اپنے آپ کو حافظ بھی کہتا ہے، اور یہ جو دوسرا شخص ہے یہ بھی عالم ہے۔ تو یہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا مناظر بھی ہے آج کی تاریخ میں، اور یہ ایک عالم ہے، دوسرا یہ عالم بھی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی یہ دیوبندی اپنے ہی اکابرین کو کیسے کفر کے گھات اتار رہا ہے، یعنی کہ ان سب پہ کیسے کفر کے فتوے لگا رہا ہے، آپ یہ دیکھتے جائیں۔ یہ جو حافظ اصغر ہے، اس نے اسی میں کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ برابر بھی علم غیب نہیں ہے، جبکہ اس کا یہ مولوی پہلے اقرار کر رہا تھا کہ ہماری کتب میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطائی ہے۔ لیکن بعد میں جب اجگر دیوبندی اس کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے غلط کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو یہ عالم جو تھا یہ بھی اجگر دیوبندی کی بات میں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گھٹانے کو لگ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ لوگ اپنے عالموں کی چکر میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کیسے بھی گھٹا سکتے ہیں ان کی بات مان کے۔ تو اس نے اجگر دیوبندی کی باتوں میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، اور یہ کہہ دیا اس نے بھی کہ ان کو علم غیب نہیں ہے۔ اور اجگر دیوبندی کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ برابر بھی علم غیب نہیں ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے۔ اب دیکھیں کہ اجگر دیوبندی کے عقیدے کے مطابق کون کون کافر ثابت ہوتا ہے، یہ دیکھتے جائیں آپ بس۔ یہ کتاب ہے معارفۃ القرآن، یہ معارفۃ القرآن ان کی کتاب ہے، یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، یعنی یہ دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کے متعلق یوں نہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب نہیں جانتے تھے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب کا بہت بڑا علم عطا کیا تھا، علم غیب کا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھتے جائیں۔ تو ان کے جو یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، یہ اجگر دیوبندی کے مطابق کافر ثابت ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اجگر دیوبندی کے ہی مطابق کافر ثابت ہوئے۔ یہ ان کی دوسری کتاب ہے یہاں پر، یہ توضیح البیان حفظ الایمان، یہ کتاب جو ہے ان کے سید حسن چاندپوری جو ہیں مولانا، انہوں نے بھی اس میں یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب کا اقرار کیا ہے۔ تو یہ حسن چاندپوری جو ہیں ان کے دیوبندیوں کے، اجگر دیوبندی کے مطابق یہ بھی کافر ثابت ہوئے۔ اور یہ دوسری کتاب ہے ان کی فتاوی محمودیہ، یہ اس میں بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کیا؟ بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، یہ ان کی کتاب ہے فتاوی محمودیہ۔ تو اس میں بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو مانا ہے، اور اجگر دیوبندی کے مطابق یہ دیوبندی ان کا عالم بھی کافر ثابت ہوا۔ اور یہ ان کا دوسری کتاب ہے، یہ ہے امداد الفتاوی۔ اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو دو قسم کا مانا گیا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم غیب ہے وہ دو قسم کا ہے، وہ علم غیب دو قسم کا ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے۔ یعنی کہ یہاں اس کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ علم غیب دو قسم کا ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطائی ہے، یعنی کہ ایک علم غیب ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے عطائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطائی علم غیب ہے۔ تو ان کے یہ بھی
یہ مولانا اشرف علی تھانوی، یہ امداد الفتاوا، یہ اشرف علی تھانوی جن کو یہ حکیم الامت کہتے ہیں، دیوبندیوں کا مجدد کہتے ہیں، وہ ان کو بھی اصغر دیوبندی نے کافر ثابت کر دیا اس کو بھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصغر دیوبندی جو ہے اس نے اپنے ہی اکابروں پہ کفر کے فتوے دھڑا دھڑ لگا دیے، آپ یہ دیکھیں پہلے۔ اور یہ اب یہ ایک دوسری کتاب ہے اور اس کا نام ہے دلچسپ و انوکھے واقعات۔ اس میں مفتی تقی عثمانی جو ہے دیوبندیوں کا، ان کا جو شاگرد ہے مولانا ارسلان بن اختر، یہ لکھ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب بریلوی حضرات مانتے ہیں وہی ہم بھی مانتے ہیں، یعنی علم غیب۔ اور اصغر دیوبندی کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم غیب اگر ذرہ برابر بھی مان لیا جائے تو وہ شخص کافر ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے جو یہ عالم اس کا جو کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اس وقت وہ بھی کافر تھا اور یہ سارے اس کے اکابر بھی کافر ہیں اصغر دیوبندی کے بقول۔ اس کے بعد اس عالم نے اصغر دیوبندی کی بات مان کے کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے۔ اب اس اصغر دیوبندی کے اس عالم کو توبہ بھی کرنی چاہیے کہ پہلے میں بے ایمان تھا تو میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ جو اکابر ہیں پھر ان کو بھی، ان لوگوں کو دونوں کو کافر کہنا چاہیے۔ یہ انہی کے اکابر ہیں، انہی کے گھر کی کتابیں ہیں۔ اور یہ ایک اور کتاب ہے علم غیب، یہ حضرت مولانا قاری محمد طیب جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور یہ اصغر دیوبندی اپنے ہی گھر کے مولویوں کو کذاب جھوٹا کہہ بیٹھا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا نام امن علی قادری ہے، ایک طالب علم ہیں ہم، اس کے باوجود بھی یہ دیوبندیوں کے جو حافظ ہیں، قاری ہیں، مولوی ہیں، ان کی حیثیت یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ قولیں کاٹ کاٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ اپنے ہی دعووں میں پھنسنے لگتے ہیں ایک طالب علم کے سامنے، تو سوچو الحمدللہ جب ہمارے عالم سامنے ہوں گے تب کیا عالم ہوگا۔ تو اصغر دیوبندی نے بھی اس ریکارڈنگ میں لاسٹ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو مان لیا اور اپنے ہی دعوے کے مطابق کافر بھی ہو گیا۔ یعنی اس کے دعوے کے مطابق اس کے اکابر بھی کافر ہوئے، یہ بھی کافر ہوا، اس کا مولوی بھی کافر ہوا، اور اس کے بعد یہ کال کاٹ کر کے بھاگ گیا۔ تو آپ اس کو ریکارڈنگ کو الحمدللہ بغور سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ نے کہا کہ دیوبندی ایسا کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور جو ایسا کہے کہ تھا وہ مشرک ہے۔ تو کیا دیوبندی یہ ایسا کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی علم غیب نہیں تھا؟ بھائی جس سے میری بات ہوئی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں۔ وہ چھوڑو، جس سے مجھے یہ بتاؤ کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں؟ ہاں یا نام ہے جواب؟ دیوبندی ہی تھے وہ سب، شاہ رخ خان تھوڑے ہی تھے، وہ سب دیوبندی ہی تھے۔ ارے کوئی بھی ہو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی علم غیب نہیں تھا۔ بالکل بالکل، جیسے اصغر دیوبندی ہو گیا، جیسے تمہارا اصغر دیوبندی ہو گیا، تمہارا بڑا مناظر جو سوشل میڈیا پر ہے۔ ابھی رکیے، حافظ اصغر ایک منٹ جناب، دیکھو حافظ اصغر علی صاحب نے آپ کو ایسا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل علم غیب نہیں تھا؟ ہاں، ابھی ان کو جوائن کرتے ہیں، اگر وہ فون اٹھا لے تو۔ ہاں ہاں کرو۔ તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે, કૃપા કરી લાઈન પર રહો। حافظ صاحب فون نہیں اٹھا رہے، تو حافظ اصغر علی نے ایسا کہا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی علم غیب نہیں تھا؟ بالکل بھی علم غیب نہیں تھا، یہی کہا۔ ٹھیک ہے، ان سے ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، برابر، اور بھی بہت سے یہی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو سنو، ہم اکابر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے سچے ترجمان کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ بالکلیہ غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا، تو اپنا وہ دعویٰ مجھے بتائیں کہ دعویٰ ہے کیا پھر، اگر یہ نہیں ہے تو دیکھو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر الیہ، ٹھیک ہے؟ تو البینۃ، آپ نے دعویٰ ہم پر کیا کہ دیوبندیوں کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ دلیل پیش کیجئے، اس لیے کہ قاعدے کے مطابق دلیل پیش کرنا آپ کا حق ہے، اور اگر آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے تو مجھ پر میں مدعا علیہ ہوں، میں مجھ پر قسم آتی ہے، میں قسم کھا لوں گا۔
دلیل پیش کیجیے کہ دیوبندی ایسا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی علم غیب نہیں تھا. سنو تو صحیح, تو ابھی جو دلیل کی تو کوئی بات ہی نہیں چل رہی ہے. تو ابھی تو میں نے جناب آپ نے دعویٰ نہیں, میری بات سنیے. ارے محترم جی ارے میں میری نہیں سنو گے تو اپنی کہو گے کیسے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم سے کہا, تم نے کہا دیوبندی ایسا نہیں کہتے ہیں, تو پھر میں نے کہا پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ دلیل تھوڑی مانگی ہے, یہ تو دعویٰ پوچھا تھا خالی میں نے کہ پھر کیا کہتے ہیں وہ بتا دو. آپ نے دعویٰ پوچھا, اس سے پہلے تو آپ نے دعویٰ دائر کر دیا نا مجھے فون کر کے جو آپ نے شروع میں کہا تو وہ تو آپ کا دعویٰ تھا. آپ نے جب یہ دعویٰ کیا تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کا کیا ہے کہ اس کی دلیل دے کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں. ارے بھائی میں نے تو تمہیں اذکر کا نام بھی بتا دیا, تم اسے کال کرو, اس سے پوچھو میرے سامنے. جناب وہ اس کو تو خیر تحقیق کر لیں گے. آپ نے چونکہ بے وقت لیے بغیر ایسے ہی اچانک فون کر لیا تو ایک کام کیجیے. کہہ دیا نا کہ اذکر کہہ رہا ہے, دیگر دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے سب کے آپ نے سب کا نام لیا, لیکن میں اہل سنت والجماعت کے سچے ترجمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے حامی اور علماء دیوبند کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا یہ غلط ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا دعویٰ ہے؟ جب یہ دعویٰ نہیں ہے تو آج تک تو ہم نے یہی سنا ہے, تو جب یہ بھی نہیں ہے تو کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے, دیکھیے حق تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں, آپ دلیل دیں, آپ نے چونکہ دعویٰ کر دیا. ہماری طرف سے وضاحت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی جزئی تھا. علم غیب عطائی اور جزئی. عطائی کا معنی بتا دوں کہ اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا, جزئی کا معنی کہ کلی نہیں تھا, جزئی یعنی کہ کچھ تھا کچھ نہیں تھا, یا بہت سارا تھا کچھ نہیں تھا. تو بات اب آئی عقیدے کی, علم غیب پر, ان کو چھوڑ کر ہم اکابر کی بات پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اکابر کی کتابوں سے. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, جب یہ دیوبندی یہ غلط کہہ رہے ہیں تو صحیح دعویٰ تم بتا دو. یہی تو میں نے کہا, کوئی دلیل تھوڑی مانگی تھی. جناب میں تو یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی, اس کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا جب تک کہ میں ان سے پوچھ نہ لوں. ٹھیک ہے, تو پھر تم نے جو دعویٰ پیش کیا ہے وہ جو تم نے بتایا ہے کہ عطائی اور جزئی تھا, ٹھیک ہے, ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا لیکن کلی عطا نہیں کیا تھا. ایک منٹ رکیے. તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اصغر علی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد جنید گجرات احمد آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائے, خیریت سے ہیں؟ حافظ جی, اللہ کا فضل. حافظ صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کرم ہے آپ لوگوں کی. میں حافظ صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل بھی ذرہ برابر بھی علم غیب نہیں تھا؟ بالکل دعویٰ ہے ہمارا پورا ہمارے مسلک کا دعویٰ ہے. یعنی ایک تھوڑا سا بھی علم غیب نہیں تھا؟ بالکل. علم غیب جب ہوگا تو مکمل ہوگا. اللہ کے وسلم کو ہر چیز دیا, کامل دیا کہ ادھورا بھی ہے. میری بات سنیے, یہ امن نام کا کوئی آدمی, ارے امن چھوڑو, کانفرنس کال پر سنو, امن چھوڑو, تمہارے سامنے انہوں نے کہہ دیا تمہارے منہ پہ اصغر علی نے کہ ان کو ذرہ برابر بھی علم غیب نہیں تھا. کس کو کہا ہے کہ پوری جماعت کا دعویٰ ہے. اب تم بات کرو. ذرا رکیں, ذرا رکیں, ذرا نہیں. اب جنید صاحب تم ہی اصغر دیوبندی سے, کیونکہ تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے, اور یہ اصغر دیوبندی دیکھو تمہارے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ان کو علم غیب نہیں تھا. تم اب آپس میں تم نے جو تضاد ہے یہ تم ان سے نپٹو. بھائی صاحب آپ عالم ہیں کہ غیر عالم ہیں؟ جی میں عالم ہوں. عالم ہیں, اچھا. آپ اس میدان کی مہارت رکھتے ہیں؟ نہیں اتنی نہیں, ابھی بس میں نے شروعات کی تھی سر. چلو بس, آپ پھر تو رضا خانی وصول سے آپ کا قول جو ہے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو جس میدان کا ماہر نہیں ہوتا یہ میدان, یہ دیکھو یعنی کہ میدان کے اعتبار سے یہاں دعوے کیے جائیں گے, دین کے اعتبار سے نہیں کیے جائیں گے. یہ دیکھو پہلے کیا یہاں میدان کے اعتبار سے دعوے کرو گے کہ ان کو علم غیب تھا یا نہیں تھا, شریعت کے اعتبار سے نہیں کرو گے. بھائی تمہارا اصول ہے یہ, کیا اصول ہے ہمارا؟ تمہارا نمبر کون؟ جھوٹ بول دو. نہیں جنید صاحب ان سے بات کرو, کیا فلم چل رہی ہے بھیا, خود سنبھالو. اچھا تم ہاں کہہ رہے ہو, وہ نہ کہہ رہے, کیا ہے؟ امان رضا ہو نا؟ جی امان رضا. امن علی قادری بریلوی شریف سے. 2 منٹ طے کر لو, میں بھی حوالہ دے رہا ہوں تمہارے کو. ارے 2 منٹ بعد میں طے کریں گے, پہلے یہ جنید بھائی سے کلیئر کر لو, پھر میں بات کر لوں گا. نمبر دو اس کا, امان کا.
अरे मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है तुमने भैया। नंबर दो, अजगर नंबर साहब मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है तुमने। 9456 हाँ बोलो, नंबर बोलो। 94566 94566 हाँ अरे 94 56 86 74 पूरा हो गया। 5674 66 अरे ब्लॉक लिस्ट में जाके देखो मेरा नंबर वहाँ सबसे पहले नंबर पे मिलेगा गालिबन। ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। आप उसका नंबर आ जाएगा इसलिए बोलने नहीं दे रहे हो, डर रहा है देखो किस तरह। अरे अच्छा दो भैया, दो नंबर दो। 94566 94566 हाँ फिर इसके बाद 58674 586 ले लिया। इल्जाम झूठा लगा रहे थे कि मैं डर रहा हूँ, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है अजगर साहब ने। चलो मैं हवाला दे रहा हूँ इसको। अरे हवाला छोड़ो, पहले ये जुनैद भाई से जो ये कह रहे थे कि हमारा ये दावा नहीं है, हमारी जमात का ये दावा नहीं है, बिल्कुल भी ये गलत बात है, पहले इनसे निपटो भैया, फिर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जुनैद भाई आप ऐसा कहा है कि हमारा अकीदा है कि नबी अलैहि सल्लम इल्म गैब है। मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अताई जुज़ई है। कहाँ पढ़ा आपने? मुफ्ती अमीन साहब की किताब जो है ना उसमें। हाँ जरा हवाला देना मुझे आप। जी 1 मिनट में किताब निकाल लूं। हाँ चलो मैं जवाब दूं, आपसे जवाब दूं। ना मुझे मत दो, पहले इन्हें जवाब दो, बाद में मुझे देना, फिर मुझसे मुकम्मल बात करो। अमान खामोश रहो। अभी बात करूंगा, अभी बिल्कुल, पहले इनका जवाब इनसे क्लियर कर लो, बिल्कुल अभी बात करूंगा। हाँ खामोश रहो। हाँ लेकिन बाद में करूंगा, पहले इनसे क्लियर कर लो। डर क्यों रहा है? खामोश रहा। अरे भाई पहले एक टॉपिक तो क्लियर कर लो। उसी पर क्लियर कर रहा हूँ, खामोश हो जा तू। कहाँ क्लियर कर रहा हो भाई? तो खामोश तो हो ना। अरे भाई पहले इनसे ये क्लियर कर लो जो तुम्हारे ये आलिम कह रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रा बराबर भी इल्म गैब नहीं था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कह रहे कि है। अरे भाई तुम पहले इनसे क्लियर कर लो, उसके बाद में मुझसे बात करो ना, क्या मसला है? खामोश रहे ना, तू तो खामोश रहे ना, उनसे कर रहा हूँ मैं, तू किसी हाँ तो पहले वो हवाला ले लो उनसे। हाँ ले रहा, सब ले रहा हूँ, फिक्र मत करो तुम। देखो ये सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ जहाँ भी नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब माना है, ये हवाला दे रहा हूँ, देखो तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ। इल्म गैब माना है, ये उसूल तफसीर तुम्हारी किताब है, उससे मुराद लुग़वी माना है। इल्म गैब के लुग़वी मफहूम पर महमूल हैं, और जहाँ पर गैरुल्लाह से इल्म गैब की नफी मज़कूर होती है, उसमें उस पर इल्म गैब के मनक़ूल शरई वाला मफहूम मोतबर है। ये सफ़ा नंबर 360 है, उसूल तफसीर तुम्हारी किताब है, ये मैंने तुम्हारी किताब से पर्सनल भेज, तुम्हारे पास पहुंच चुका है कि हवाला। जहाँ भी हमारे उलमा किसी ने भी इल्म गैब का माना लिया है, उससे लुग़वी मुराद है। जहाँ इस्तिलाही होगा वो इल्म गैब अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं होगा। बात समझ में आई तुम्हारी? किसके? मेरे? हाँ तुमको समझा रहा हूँ मैं। अरे मुझे क्यों समझा रहे हो? पहले अपने वो भैया को समझाओ, उन्हें। वो कह रहे हैं, तुम कह रहे हो नहीं है, उन्हें समझाओ। मैं इसका जवाब तो बाद में दूंगा, मुझे क्यों समझा रहे हो भाई? विनीत भाई जी पहले उन्हें समझाओ। जहाँ पर भी हमारे बहुत सारे उलमा ने इल्म गैब मुराद लिए है, उससे मुराद लुग़वी इल्म गैब है, लुग़वी। अच्छा और लुग़वी जो, खामोश रहो, ये अमान खामोश रहना। मैं तो बोल ही नहीं रहे होगे, पागल हो। लुग़वी शरई नहीं बनता, शरई इस्तिलाही और शरई अलग माना होता है, लुग़वी अलग माना होता है। लुग़वी माना से अकीदा मुराद नहीं लिया जाता। तुम तो जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, एक जुमले पर उछल कूद करो बस। ये देखो इन्होंने अपने ही देवबंदी को जाहिल कह दिया। खामोश रहो यार तुम। हम मौलाना जुनैद साहब को मैंने समझा दिया कि जहाँ भी हमारे उलमा ने इल्म गैब जुज़ई या फिर कोई भी माना ले, उससे मुराद लुग़वी होता है, और लुग़वी अकीदा नहीं बनता। बराबर। मौलाना जुनैद साहब मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, रुकें। जी मैं समझ गया साहब, समझ गए ना जी। हाँ, और ना हमारा अकीदा नबी अलैहि सल्लम के लिए इल्म गैब है ही नहीं, क्योंकि इल्म गैब इस्तिलाही जहाँ होगा वो अकीदा होगा, और इस्तिलाही हमारे किसी आलिम ने लिया नहीं है। अच्छा। इल्म गैब के हिफ्ज़ुल ईमान के मुतालिक मुर्तज़ा हसन तांती रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि हिफ्ज़ुल ईमान में इल्म गैब मुराद लिया है, जबकि वहाँ इल्म गैब लुग़वी है, इस्तिलाही नहीं है। क्यों बता रहा हूँ, सुने। ये देखिए मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, इनके यहाँ भी बात लिखी गई है कि अरे हमारे यहाँ का हम जवाब देंगे, पहले उसका जवाब दे दो उसको। हाँ जवाब तुम्हारे यहाँ तुम जवाब दे नहीं सकते। अरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जवाब दूंगा।
अरे कुछ दे नहीं पाओगे तुम, तुम्हारी औकात नहीं कि इल्म ग़ैब हमसे बात कर लो। अरे तुम मेरा फोन काट के ब्लैक लिस्ट में डाल के भागे हुए हो, पास हो जाओ, टुकड़ा टुकड़ा हो जाओगे तुम, भागे हुए हो भैया, टेंशन मत लो, अभी भी तुमने नहीं निकाला नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट से। तुमको मैंने हवाला भेज दिया है, वो पहले तो वो हवाला क्लियर करके भेजो, उसमें कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जो है धुंधा है वो। किताब है उसूल तफसीर है, उसूल तफसीर पहले सफा करके भेजो, वो उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बताओ जुनैद साहब, देखो मैंने तुम्हारे मुंह पे कहलवा दिया और ये खुद कह रहा है असगर देवबंदी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रा बराबर भी इल्म गैब नहीं है, और तुम कह रहे कि अब ये इनसे क्या कहते हो तुम? मैंने कहा कि नबी पाक हमको जो इल्म गैब को इस्तिलाही वाला है, मैं कहाँ कहा? बोलने दे, मैं जवाब दूंगा। तुमने कहा कि अताई इल्म गैब है उनको, जुज़ई यानी थोड़ा है, ये कह रहा है जर्रा बराबर भी नहीं है। लुग़वी अरे क्या लुग़वी, क्या लुग़वी, क्या क्या लुग़वी क्या होता है? एक मिनट, अभी जब तुम मुझसे कह रहे कि उनको इल्म गैब था तो तुम लुग़वी कह रहे थे। कौन? ये जुनैद देवबंदी कह रहा था। अभी तो मुझसे एक बार भी लुग़वी नहीं कहा। तो मैंने तो आम बोला था, आपने आम बोला था ना, तुमने कहा कुल्ली नहीं था, जुज़ई था। कुल्ली का मतलब, अरे सुनो, कुल्ली का मतलब होता है सुनो, कुल्ली का मतलब होता है ज्यादा और जुज़ई का मतलब होता है कम, ठीक है? तुमने कहा कम था और ये असगर देवबंदी कह रहा है कि जर्रा बराबर भी नहीं था। अब तुम अपनी बात से पलट गए, कहने लगे लुग़वी। अभी लुग़वी पे मैं असगर देवबंदी को धोऊंगा, वो तो ठीक है। जी हाफिज साहब, आप बिल्कुल मत बोलो। अब वो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी तक तो उनका गैब मान रहे थे ये जुनैद, लेकिन असगर देवबंदी की तकलीद करने की वजह से इनने वो भी इनकार कर दिया। ये देखो पहले, ये रिकॉर्डिंग जो भी सुनेगा अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ जाएगा कि ये देवबंदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने मौलानाओं की मोहब्बत में चलते हैं। देखो असगर देवबंदी के कहने पर इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुज़ई इल्म का भी इनकार कर डाला। अल्लाह धज्जियां काहे की उड़ाएगा रे? तूने अपने देवबंदी की धज्जियां उड़ा दी और देवबंदी ने तेरी इत्तेबा करके और अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी। सर तू बोल ले, मैं बाद में बोलूंगा, 2 मिनट बोल ले तू। 2 मिनट बोल लूं? बोल 2 मिनट। हाँ ठीक है। भागना मत, फोन काट के मुझे बोलने देना है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम भागते नहीं है, तुम भागते हो नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल के। सबसे पहली बात इस रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि देवबंदी जुनैद साहब ने कहा, अरे हाँ शुरू करो 2 मिनट शुरू, फिर मुझे ठीक है, ठीक। अरे खामोश रहो पहले। सबसे पहली बात, देवबंदी जुनैद साहब ने कहा था कि जो भी ये बात कहता है, मैंने इनसे कहा कि असगर देवबंदी और देवबंदी भी हैं जो ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जुनैद देवबंदी साहब जो आलिम है देवबंदियों के, ये कहते हैं कि हमारी जमात का ये दावा नहीं है। तो असगर देवबंदी अगर ये कह रहे हैं तो ये गलत है, और अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा। तो असगर देवबंदी जब सामने आए तो जुनैद देवबंदी आलिम साहब ने, असगर देवबंदी ने जब उनके सामने ये कह दिया कि हाँ जर्रा बराबर, ज्यादा कम तो छोड़ो, उनने तो इनकार कर दिया कि जर्रा बराबर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इल्म गैब नहीं था। तो अब ये इन देवबंदी जुनैद साहब को चाहिए था कि असगर देवबंदी से कहते कि तूने गलत कहा है, तू बदतरीन शख्स है। तो इनने देवबंदी असगर की तायद कर ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के असगर देवबंदी की इत्तिबा कर ली। यही हम कहते हैं कि ये देवबंदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नहीं, अपने अकाबिरों की मोहब्बत में गुमराह हुए हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करते तो राह हक पा लेते। बोलो भैया जी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो किस तरह बात इसने कहा कि जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पे इनकार करता है वो अपने मसलक और अपने उलमा की मोहब्बत में, और जो मानता है नबी की मोहब्बत में मानता है। अब तुम्हारे घर से मैं साबित करूंगा, हुसामुल हरमैन दे रहा हूँ, हुसामुल हरमैन में तुम्हारे मुजद्दिद खुद कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के मानने को जो है शिर्क लिखा है। देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब नहीं मानते। तुम्हारा ये मैं निकाल रहा हूँ, रुको, मैं हुसामुल हरमैन निकाल रहा हूँ। पहले हवाला भेजो, ठीक है? उसके बाद पहले हवाला भेजो। अली असगर पहले हवाला भेजता है, फिर बात अली असगर की आज धुलाई होगी जम के अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे लोगों ने तस्लीम किया है, ठीक है? तस्लीम नहीं किया है,
अरे खामोश झूठे रहा, हवाले भेजता अली असगर। एकदम खामोश रहा। हाँ तो हवाला भेज। बिल्कुल, ये देखो मेरी बारी है, बोल रहा है, देखो किस तरह, देखो मैं तेरी बारी हाँ तो बोल रहा हवाला भेजना, अभी तू बोल थोड़ी रहा है, अभी तो हवाला भेज रहा है ना। तुम्हारे धज्जियां उड़ाऊंगा अभी मैं। अभी धज्जियां उड़ गई, वो देवबंदी जुनैद की भी तेरी भी आपस में ही उड़ गई अच्छा, धज्जियां। मैं पहले तेरे को वो हवाला दे दूं, वो कौन सा? पहले वो हवाला दे, हवाला दे। उसूल तफसीर से दे रहा हूँ, रुक। उसूल तफसीर से तो साफ मांग रहा है ना। तेरे घर में माना गया है कि इल्म गैब का लुग़वी माना भी होता है, इल्म गैब का लुग़वी माना भी होता है। हाँ तो भेजना, तो उसमें क्या है? देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो कि चिल्ला अबे क्यों तू रहा है? हवाला भेज रहा है, कोई वो थोड़ी कर रहा है, हवाला भेजना पहले। तू चिल्ला क्यों रहा है? तू फालतू की बातें कर रहा है ना अब, या तो तू अपने 2 मिनट तू पूरे कर ले, 1.5 मिनट तो तेरा हो ही गया है। अरे मैं फालतू बात कर रहा हूँ, मेरी बारी है ना, तो मेरी बारी में मुझे बोलने का दिया तू? अबे पूरा तो बोला है, जब तू बोला कि मैं हवाला दे रहा हूँ तब मैं बोला हूँ। अभी भी बोल रहा है, देखो अभी भी बोल रहा है, देखो। अबे तू हवाला तो भेज, तू हवाला ही कहाँ भेजा जो मैं खामोशी से सुनूं? तो खामोश कहाँ हो रहा है तू? हाँ तो हवाला भेज चल। हाँ तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा, इल्म का बताई मानता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए। ये देख तेरे को दे रहा हूँ इल्म गैब। तेरा अहमद यार खान नईमी कहता है कि इस्तिलाह में जो इल्म असाई हो गैबी नहीं कहा जाता, इसलिए कहते हैं कि लोग भी माना है। इल्म गैब सिर्फ जाती को कहते हैं। देख हवाला दे दिया तेरे को, धज्जियां उड़ा दो, खबीस कहीं का कुछ पता नहीं, अपने धर्म का अकीदा जानता नहीं है, आ गए रुस्वा होने के लिए। मौलाना जुनैद साहब। जी जी हाफिज साहब, मैं आपको हवाला दिया, कौन सा नंबर है आपका? 8758 वाला 8758 381732। तो तुम्हें देख हवाला देख, पहला हवाला पढ़, तू हवाला पढ़। तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा, अपने धर्म को नहीं मानता है तो आपकी गुफ्तगू सुना नहीं है, इसका धज्जियां उड़ाऊं तेरा जैद अशरफी का नहीं सुना तू हैं? आ गया जलील होने के लिए, भाग गया अभी सब लगता है। भाग गया फोन करके। कौन भाग गया? हो गए तेरे 2 मिनट, अब खामोश रहे। तेरे 2 मिनट हो गए, अब खामोश रहे, ठीक है? हाँ हाँ तो इसके अंदर जो बात लिखी गई है, जो इसने मुझे एक हवाला भेजा है, इसके अंदर लिखा हुआ है आम लोगों के बारे में, ठीक है? और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुझे भेज रहा है। इतना बड़ा कज़्ज़ाब है। पहली बार इसने जो अपनी तरफ से माना खड़ा है वो माना यहाँ पे है नहीं, इसने खुद इबारत पढ़ी है। पर तू पढ़, इबारत कहते हैं जिस पर कोई दलील ना हो, दलील कायम हो जाए, वो इल्म गैब नहीं रहता। वला उतलिया अलैहि मखलूकुन, की गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तला ना किया जाए। और तो दलील किस तरीके की? जब तुमने दलील किस तरीके की? सुन तूने ये दलील का जिक्र किया है, वो दलील किस तरीके की? उसी में जिसने यहाँ लिखा है कि जो इल्म अताई वो गैबी नहीं होता। सुन यहाँ पर दलील की बात चल रही है, मक्कारी मत कर। सुन तशरीह कर रहा है, गलत तशरीह। ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस पर दलील कायम हो, और दलील अबे जाहिल सुन भाग कहाँ रहा है? अभी देख तुझे कैसा रगड़ता हूँ मैं, अभी देख तेरा क्या होता है। ये देखो ये दलील पर इबारत पर झूठ बोल रहा है, और इस इबारत पर झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि जिस पर दलील कायम न हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है। लेकिन ये नहीं बता रहा कि दलील कौन सी दलील। जब दोनों साथ में मिल जाए तो इल्म गैब जो है वो जाती होता है, असाई होता नहीं। ये अपने मुजद्दिद को नहीं मानता है। अबे तूने दलील नहीं बताई, कौन सी दलील? ये देखो ये यहाँ से भाग रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसने झूठा इल्जाम लगाया कि जर्रा बराबर भी इल्म गैब नहीं था, और मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह पर इसने झूठ बांधा। हाँ नहीं चिल्लाऊंगा, सुन हाँ सुन अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलील का जिक्र किया है, जो दलील का जिक्र किया है वो यहाँ वजाहत कर। अजगर सुन यहाँ वजाहत कर, कौन सी दलील का जिक्र किया है उन्होंने? मालूम कर लें। ये देखो जिस पर दलील कायम होती है वो तो इल्म गैब होता ही नहीं है। दलील का मायना देखना, सुनना, सूंघना, चखना, और उसको हाँ ये होती है दलील। तो इसको तो उन्होंने कहा है कि जिस पर दलील कायम हो जाए वो इल्म गैब नहीं होता। साफ तो जिक्र है यहाँ पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चल हेलो अजगर। हाँ बोल मैं बोल लिया। हाँ अब मैं बोलूंगा। सुन
यार मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस इबारत के अंदर वाज़े मौजूद है जिस पर दलील कायम हो जाए, यानी कि जिस पर दलील कायम हो जाए। दलील अब वहाँ वहाँ जो दलील की वजाहत है उसकी ये दलील की वजाहत ये कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम किसी भी मखलूक में अगर दलील कायम हो जाए तो इल्म गैब नहीं। अब तो वो वजाहत तो करके दलील क्या क्या दलील कायम हो जाए, क्योंकि वहां तो दलील का जिक्र है कि दलील कायम हो जाए तो इल्म गैब नहीं रहता, अताई नहीं रहता, जाती रहता है। तो वो दलील क्या है? तो वह दलील हम तुझे बता रहे हैं। दलील यानी कि उसको अगर देख लिया जाए तो देखना तो दलील है, सुन लिया जाए, सूंघ लिया जाए, चख लिया जाए, उसको दलील कहते हैं। तो अगर ये इन चीजों में आ गया तो वो इल्म गैब वाकई नहीं रहेगा। ये तो हमारा अकीदा है। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि ये बता जो तूने अभी तक नहीं बताया, इबारत पर तू मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की झूठ बांध रहा था। अब तू ये बता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर जर्रा बराबर भी इल्म तस्लीम कर लिया जाए गैब, या फिर उनके अलावा किसी और के अंदर गैब का इल्म तस्लीम कर लिया जाए, तो उस पर हुक्म क्या लगेगा ये तो बता दे। बोल लिया, अभी बोला नहीं हूँ, पहले लुकमा दे। अभी मेरा 1 मिनट हो गया, 1 मिनट रह गया। मैं तेरे बारे में नहीं बोलूंगा, तू बोल ले ना, पहले हुक्म बता क्या लगेगा। मैं खामोश हूँ, जब तू बोलेगा। अबे खामोश मत रहा, पहले हुक्म बता, हुक्म क्या लगेगा। तू मुझे जवाब दे, जो इल्म का इनकार करे क्या है वो? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक गैब का इनकार करे उसका हुक्म मैं तुझे अभी बताता हूँ। पहले तू ये बता जो माने, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या किसी और मखलूक के लिए, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। बोलूं मैं? अबे हुक्म बता। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबे नहीं बोला अभी तू, अभी बोलेगा नहीं तू। ये देखो, इससे मैं हुक्म पूछ रहा हूँ, इतना डर रहा है, हुक्म नहीं बता रहा है, क्योंकि इसको पता है कि हुक्म बता दिया तो इसकी मौत आ जाएगी। चल जल्दी बता, हुक्म बता। 2 मिनट है, उसमें हुक्म भी लगाऊंगा, जवाब भी दूंगा। अबे मेरे 2 मिनट छोड़, मेरे पहले मेरे तो मुकम्मल हो जाने दे। मैं तुझसे हुक्म पूछ रहा हूँ, मेरे 1 मिनट बाकी है अभी। 2 मिनट रहेगा, पर अभी बोल हाँ 2 मिनट रहेगा, लेकिन मैं अपना 1 मिनट में अभी तुझसे मैं तुझसे हुक्म पूछ रहा हूँ। हुक्म बता पहले, हुक्म क्या लगेगा। अली असगर पहले हुक्म बता जल्दी, हुक्म क्या लगेगा। अभी देख तुझे कैसी मैं तेरे घर के लोगों को देख कैसे मैं कुफर के घाट उतारता हूँ, तो बच के नहीं भागेगा आज यहाँ से। इल्म गैब के ऊपर जो आज मैं तुझे तेरे घर वालों को शिर्क के घाट उतारूंगा, देख तू कैसे बच के भागेगा यहाँ से। तू बच के तक नहीं भागेगा, सिर्फ कॉल काट के भागेगा। ये उसने हवाला कुछ नहीं दिया है, जो हवाला उसने दिया उस पर इसने बांधा झूठ। अब ये बता क्या हुक्म लगेगा। अरे भैया हुक्म बता, तेरे घर के अंदर से मैं तुझे और तेरे घर वालों को मुशरिक साबित करूंगा, टेंशन मत ले। अभी तो पहले हुक्म तो बता। भाइयों सामीन हजरात, ये हुक्म इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि इसको मालूम है कि अगर इसने हुक्म बता दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये जो इसने घटाई है तो ये फंस जाएगा और पकड़ा जाएगा और इसके अकाबिर कुफर के घाट उतर जाएंगे। मैं इससे कह रहा हूँ कि हुक्म बता, हुक्म। ये मेरे बीच में बोल रहा है। देखो मैं तो खाली हुक्म पूछने के लिए खामोश हुआ था, वरना मैं इसकी इबादत पेश करके इसको कुफर के घाट उतारता, इसके अकाबिर को, इसके हकीमुल उम्मत को मैं भी दो कुफर के घाट उतारूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये असगर देवबंदी है और ये हुक्म नहीं लगा रहा है। चल जल्दी बता हुक्म क्या लगेगा। ये देखो पहले ये अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह पर इसने झूठ बांधा, इबारत के अंदर वो चीज है ही नहीं जो ये कह रहा है। हाँ चल अब ये बता क्या हुक्म लगेगा, जल्दी बता। अरे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्म गैब को माने या फिर किसी और के लिए भी माने, जर्रा बराबर भी या थोड़ा बहुत भी, उस पर क्या हुक्म लगेगा बता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जर्रा बराबर भी इस्तिलाही शरई इल्म गैब माने वो काफिर है। वो इस्तिलाही की तारीफ कर, इस्तिलाही की तारीफ कर। हाँ इस्तिलाही उसे कहते हैं इल्म और गैब। इल्म गैब जब दो जुमला साथ में मिल जाए तो शरई होता है, इस्तिलाही होता है, अल्लाह तबारक व तआला का खासा है, किसी मखलूक के लिए नहीं है। फतवा रज़वी में अबे फतवा रज़विया को छोड़, तू इबारतों पे बांधता है झूठ। ये देखो फतवा रज़वी भेज दिया, सुन तो सुनेगा नहीं, क्या समझेगा। सुना क्या है इसमें। हाँ बोल। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर साथ में लफ्ज इल्म गैब इस्तेमाल करे तो उस पर हुक्म लगेगा, या खाली गैब इस्तेमाल करे या फिर किसी के लिए बगैर इल्म और गैब के सिर्फ ये तस्लीम कर ले कि इसने हाँ ये गैब की बात जो बताई है या फिर ये भी गैब की बातें जानता है, उस पर क्या हुक्म लगेगा।
कितने देर तक बोला? एक सवाल करने कितना लड़ना? अबे तू बता जल्दी। मैंने फिर कह दिया, फिर कह रहा हूँ, 3 मरतबा तीसरी मरतबा कह रहा हूँ मैं, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए शरई इस्तिलाही इल्म गैब जर्रब माने वो काफिर है। ये तुम्हारा मुजद्दिद अच्छा अच्छा, सुन 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 सुन, बहुत सारे लोगों का फतवा है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। सुन सुन सुन, उन्होंने तो ये कहा है कि आप मेरे बीच में बोल रहा है, ये मेरे बीच में बोल रहा है। हमारे अकाबिरों ने तो ये कहा है कि आला हज़रत दौलतुल मक्किया में लिखते हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती इल्म गैब माने वो काफिर है। वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह की अता से अगर कोई शख्स किसी भी शख्स के लिए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब माने अल्लाह की अता से कि इसको जो है वो अल्लाह की अता से है, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? सामीन, इसने जो पूछा था अभी अता लगा दिया इसने कि अल्लाह, इसने पहले पूछा था। चल ठीक, अता हटा देता हूँ, चल सुन सुन, अता हटा देता हूँ। अब ये बता, सुन सुन सुन, अभी जो अल्लाह के नबी सुन सुन सुन, अता हटा देता हूँ, जवाब नहीं पा रहा। सुन ले, अभी अता अगर मैंने हटा दिया तो और बुरा फंसेगा। ये देखो, अता हटा देता हूँ, सुन सुन सुन, अता हटा देता हूँ। ये ले, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो शख्स किसी शख्स में गैब मान ले, अभी कहाँ दिया तूने जवाब? मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या किसी शख्स के लिए गैब मान ले, ठीक है, आसानी के लिए मैंने अता लगाया था। चल अता भी हटाता हूँ, अभी तो तू कुत्ते की तरह मारा जाएगा अता हटा के। सुन, अगर कोई शख्स किसी शख्स में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब तस्लीम कर ले तो फिर उस पर हुक्म क्या लगेगा? फिर क्या बोल रहा है तू? है क्या बोल रहा है तू? क्या गैब होता है? जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए गैब माने, सिर्फ गैब, वो मुसलमान है, साहिब ईमान है, कुरान का मानने वाला है, कुरान का वफादार है, तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए गैब माने। मुखालिफ कुरान नहीं है, शरीयत का मुखालिफ नहीं है, न नबी का दुश्मन है, नबी का वफादार है, तो अल्लाह के नबी के लिए गैब माने। अच्छा, तो अभी तो तू कह रहा था कि जर्रा बराबर भी किसी ने मान लिया तो वो काफिर है। अबे गधा, जाहिर पहले बात समझ, मैं इल्म गैब की बात कर रहा हूँ, तू गैब की बात कर रहा है। अबे जाहिल कहीं के, इल्म गैब किसे कहते हैं? जहाँ आती है वो शरही, तो अल्लाह के तबारक व तआला खासा होता है। तो कभी इल्म गैब, अच्छा ये बता, इल्म गैब किसे कहते हैं? अच्छा, इल्म गैब नहीं होता है। जाहिल अगर हम मुनाज़रा करने, खामोश है, अभी देख तू फंसेगा या मारा जाएगा। ये बता, इल्म गैब किसे कहते हैं? हवाला नहीं देगा तू? अबे इल्म गैब बता, क्या किसे कहते हैं ये बता। अभी तूने कहा है ना, तेरे पर्सनल मैंने 2 हवाला भेज दिया, इल्म गैब किसे कहते हैं? नहीं तू बताएगा रिकॉर्डिंग में, पर्सनल छोड़। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। इल्म गैब की तारीफ कर। अरे खामोश तो रहना तू। हाँ सामीन देखें, ये मैंने 2 हवाला दिया है, एक फतवा रज़विया का और एक हवाला मैंने दिया है जाल हक का। इल्म गैब अताए गैब किसे कहते हैं, दोनों में खुलासा किया है, लेकिन इतना बड़ा जाहिल है कि अपनी जाहिल कहीं के ये कह रहा हूँ कि इल्म गैब किसे कहते हैं, इसकी तारीफ कर जल्दी। मखलूकुन गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो, उस पर किसी मखलूक। अब जाहिल कहीं के क्यों तू अपनी कौम को गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है हर वक्त। ये देखो, अजगर देवबंदी से कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बता रहा है। मैंने इससे कहा तो कह रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब है, अब इल्म गैब का इनकार कर रहा है। यानी इसकी बातों में इतना तजाद आ गया, इतना तजाद आ गया कि इतना डर गया कि इल्म गैब मान भी रहा है। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इल्म गैब किसे कहते हैं? देवबंदी अजगर, सुन अजगर, सुन। हाँ मैं ये बता, इल्म गैब किसे कहते हैं? तू कह रहा है कि इल्म गैब का मानने वाला काफिर है, तो अब ये बता, इल्म गैब की तारीफ क्या होती है? जल्दी बता चल। गैब से दाखिल करते कहा। अबे जाहिल कहीं के, इल्म गैब किसे कहते हैं ये बता। ये देखो, ये सिर्फ हवालों पर झूठ मानना जानता है। इससे मैंने इल्म गैब की तारीफ पूछी, ये इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि इसने जो ये कहा है इल्म गैब का मानने वाला काफिर है और गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। तो गैब पहले तो ये जर्रा बराबर भी गैब मानने को शिर्क कह रहा था, कुफ्र कह रहा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कह रहा है, जबकि मैंने इसको कहा कि तेरे अकाबिरों को मैं कुफ्र के घाट उतारूंगा, तो कह रहा है कि हाँ नहीं, गैब तो था उनको लेकिन इल्म गैब नहीं था। अब यहाँ पलट गया, तो मैंने इससे पूछा कि इल्म गैब किसे कहते हैं, इसकी तारीफ कर, तो ये देखो तारीफ नहीं कर रहा है। चल बता, इल्म गैब की तारीफ क्या है? सामीन आप ही बताएं, क्या मैंने इल्म गैब की तारीफ नहीं की? कहाँ की है तूने? तारीफ की अभी कहाँ की है? तो इनको मानना अभी इल्म गैब की तारीफ कर, तारीफ तौबा कर लेना चाहिए।
ये रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे डालूंगा तेरी जहालत सामने आएगी लोगों को इंशाल्लाह। चलिए बता, सुन ये मुफ्ती लाल खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था जिस पर दलील कायम हो, अब वो दलील देखी जाएगी क्या है। अब ये बता कि गैब जो होता है वो इल्म होता है या नहीं, ये बता। क्या गैब जो होता है वो इल्म होता है या नहीं, मना किसने किया? होता है या नहीं, हाँ या ना? गैब इल्म होता है। वो तुझसे पूछ रहा हूँ, होता है कि नहीं? शैतान गैब पे है कि जाहिर पे है? अबे वो नहीं पूछ रहा हूँ, ये बता इल्म होता है गैब या नहीं, ये बता। तू मारा जाएगा तू। हर गैब की चीज इल्म नहीं होता। क्या? हर गैब की चीज इल्म मुराद नहीं है। अच्छा, हर गैब इल्म नहीं होता है। नहीं, अच्छा, इल्म क्या होता है? मुझसे तो मेरे पास तेरे सिखा दूंगा मैं, अगर तू ना यहाँ बताएगा तो रिकॉर्डिंग में। अभी देख तू लोगों को जो गुमराह कर रहा है, तू गुमराह कर रहा है जो लोगों को, अभी देख तू यहाँ मारा जाएगा। इल्म किसे कहते हैं ये बता। इसे इल्म तक नहीं पता है, अभी कह रहा था इल्म अलग है गैब अलग है, और अब कह रहा है हर गैब इल्म नहीं होता, यानी हर गैब में से इसने कुछ को मान लिया कि ये इल्म होता है, यानी वो इल्म गैब होता है। अब तो ये बता इल्म किसे कहते हैं। हेलो असगर, इल्म किसे कहते हैं ये बता। तुझे मैं ये भी सिखाऊं? सिखाएगा नहीं, यहाँ तू मारा जाएगा। अभी ये बता इल्म किसे कहते हैं। तुझे मैं ये सिखा दी इल्म किसे कहते हैं। तू मत सिखा, तू ये बताएगा कि इल्म कहते किसे हैं, ये बताएगा। अभी जब तू इल्म की तारीफ करेगा खुद ही फंस जाएगा उसमें, इसीलिए नहीं कर रहा है। चल इल्म की तारीफ कर। इल्म कहते हैं आलिमा यालमु, किसी चीज को कमा हक कहू, जानना पहचानना, किसी चीज को जानना इसको इल्म कहते हैं, ठीक है असगर। आप सुन, किसी चीज को जानना उसको कहते हैं इल्म। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख लिया, जान लिया, ठीक है, या क़यामत के बारे में जान लिया कि उस दिन क्या क्या होने वाला है, तो क्या ये इल्म के अंदर है कि बाहर है? इल्म है, इल्म है ना। तो ये इल्म गैब हुआ या नहीं? नहीं हुआ। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे जलील आदमी, अब तूने खुद ही कहा था कि ये इल्म है किसी को उसकी हकीकत के साथ जान लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी हकीकत के साथ, क़यामत की बातों के बारे में भी जाना। तो अब ये गैब भी है क्योंकि क़यामत की निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताई गई हैं और जो वो जानते हैं वो तो गैब है। अब ये जानना ही इल्म है, तो ये इल्म गैब हुआ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता हुआ, ठीक है। तूने अभी कहा था कि इल्म और गैब अलग अलग है, उसके बाद तू अपने पलटी मारी कि गैब और इल्म यानी हर गैब इल्म नहीं होता है, कुछ होता है, तो तूने ये पलटी मारी। अब तू उससे मैंने जब इल्म की तारीफ करवाई तो तू यहाँ पर ही फंस गया, क्योंकि इल्म कहते ही उसे हैं जिस चीज को जान लिया जाए उसकी हकीकत के साथ। तो गैब में भी जो चीज जान ली जाए उसको गैब कहते हैं, यानी छुपी हुई चीज को जान लिया जाए तो उसको गैब कहते हैं, और जानने ही को इल्म कहते हैं। तो ये इल्म गैब हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो तू अपने ही फतवे से काफिर साबित हुआ क्योंकि तूने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अगर मान लिया जाए तो वो शख्स काफिर है, तो तू अपने ही फतवे से काफिर साबित हुआ। हाँ दे जवाब दे। तुमने बहुत सारे सवाल मुझसे किए, मैंने जवाब दिया। अब ये बता, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी बारी है ना। तुमने मुझसे पूछा इल्म किसे कहते हैं, मैंने जवाब दिया। तुमने पूछा गैब किसे कहते हैं, मैंने जवाब दिया। तुमने पूछा इल्म गैब किसे कहते हैं, मैंने दो हवाले जवाब दिया। अब मैं कुछ पूछूंगी, जवाब दो, खुद ही फंस गया। मैं जवाब दूं ना तुमको? हाँ दे जवाब दे। मैं सवाल तुमसे कर रहा हूँ कि तुम्हारी किताब में लिखा है जो चीज गैब छुपी हुई हो अगर जाहिर हो जाए तो गैब नहीं रहता। किसने कहा? अहमद यार खान नहीं, मैंने कहा कि जो चीज अल्लाह जाहिर कर दे नबी पर, जन्नत जाहिर कर दिया, जहन्नम जाहिर कर दिया, जो गैब को अल्लाह ने बता दिया वो गैब नहीं रहता। तुमने भी मान लिया, तुम्हारा अहमद खान ने भी मान लिया, अल्लाह तो इस बात को तुम्हें ऐलान कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब नहीं है। अमान ये देखो अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दोज़ख दिखाई गई, ये जाहिर की गई, ये गैब नहीं है, ये बता। सुन अभी तक तू मारा जाएगा। अब ये बता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दोज़ख दिखाई गई, तो ये बता कि वो गैब है या नहीं है? बातें भी मान लेता है
है कि अल्लाह के ये देखो, ये भागा, ये अजगर भागा, ये अजगर भागा। ये देखो, अब ये बता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये भी बताया गया है, सुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाई है, अल्लाह ने तो वो गैब है या नहीं ये बता। अब बात मुकम्मल भी हो चुकी है। अरे नहीं हुई है, भागवत, अबे तू भागवत, अबे भागवत, ये देखो भाग रहा है, ये बता, इल्म गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दोज़ख दिखाई गई है, वो गैब है या जाहिर है तेरे? हेलो, कहाँ गया? ये देखो अजगर भाग गया। तो सामईन हज़रात कह रहा है कि जो चीज जाहिर हो जाए, हाँ, जो चीज जाहिर हो जाए हमारे सामने, यानी कि जो चीज जाहिर हो जाए, जिस पर दलील कायम हो जाए, यानी जो हमारी आंखों के सामने आ जाए या हमारे कानों से हम सुन लें या उसे देख लें, चख लें, सुन लें, सूंघ लें, तो वो चीज गैब नहीं रहती। लेकिन यही तो बात है कि जिन चीजों को हम देख, सुन, सूंघ नहीं सकते वो सब गैब हैं। अब इन गैब की चीजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को देखा जो चीजें देखी, सुनी, सूंघी नहीं जा सकती, जिन पर दलील कायम नहीं हो सकती, उन चीजों को देखना ही तो गैब है। अब अगर ये कहेगा कि नहीं वो गैब नहीं है, तो ये बता कि जन्नत के बारे में तुझे बताया गया, इस पर दलील कायम हो गई, तूने अपने कानों से सुना, तो क्या जन्नत गैब नहीं रही? जन्नत तो गैब ही है। तो पता चला ये लोग देवबंदियों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तो खासियत है कि वो चीजें जान लेते हैं जो गैब है, छुपी हुई है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना, सूंघा, जिनको जाना ही नहीं जा सकता, उन चीजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो गैब जान रहे हैं, गैब देख रहे हैं, तो यही तो कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक के लिए कि वो गैब नहीं होता जिस पर दलील कायम हो जाए, यानी जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, सुना जा सके, सूंघा जा सके, वो गैब नहीं होता। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सारी चीजों को देख रहे हैं, तो ये सब गैब है। हेलो जुनैद, बोल। हाँ। तो ये देखो, ये मुझसे कह रहा था कि फोन काट के भागेगा, खुद ही फोन काट के भागा है, और तुम्हारे सामने ये बात भी वाज़ेह हो गई कि देखो इसने तुम्हारे सामने ही जर्रा बराबर इल्म का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब का इनकार किया। सबसे पहले तो तू झूठ बोला कि मैंने इस्तिलाही मुराद लिया है। किसने? मैंने तो इस्तिलाही, तूने, मैंने तो इस्तिलाही का एक मरतबा भी लफ्ज नहीं बोला कि नबी पाक से इल्म गैब इस्तिलाही मौजूद था। तू झूठा कज़्ज़ाब है। अबे झूठे कही के, तूने ये कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब जुज़ई था, कुल्ली नहीं था, ये कहा था तूने। इल्म गैब जाती के बारे में, इल्म गैब जाती भी नहीं, इल्म गैब जो मैंने कहा वो लुग़वी के बारे में कहा। लुग़वी का तो तूने नाम भी नहीं लिया था, अताई का नाम लिया था। तो मैंने इस्तिलाही का भी तो नाम लिया था, अपनी तरफ से कैसे लगा लिया? तूने लुग़वी का नाम थोड़ी लिया था, तूने अताई का नाम लिया था। और अजगर कह रहा था कि अताई इल्म गैब भी नहीं था जर्रा बराबर भी उनको। मैंने तो जो भी कहा वो अताई का कहा, वो मैंने हाँ, तो उसी को वो अजगर कह रहा था कि जर्रा बराबर भी नहीं था। अब बता, वो जो उन्होंने जो कहा मेरी बात इसके मुखालिफ नहीं थी। मैंने कब कहा कि इस्तिला तो अपनी तरफ से लगाता है। तूने अताई कहा था कि नहीं कहा? झूठ मत बोल, तूने अताई कहा था कि नहीं कहा था? अताई कहा, लेकिन अताई भी जो है वो लुग़वी है, इस्तिलाही नहीं। क्या लुग़वी क्या होता है? ये लुग़वी क्या होता है? क्या माना इस्तिलाही के? इस्तिलाही क्या इस्तिलाह, क्या लुग़वी इस्तिलाही क्या? तो जाहिल है क्या? तुझे लुग़वी का माना मालूम है ना? तू बताएगा कि लुग़वी क्या होता है? बता तो जरा। इल्म गैब जहाँ मुराद है हमारा लुग़वी माना मुराद है। ये हाँ, तो लुग़वी क्या, वही तो बता, लुग़वी क्या? लुग़वी का माना इल्म गैब का जो लुगत के एतबार से होता है कि पोशीदा बातों का जानना, बस वो मुराद इल्म गैब। तो ये तो गैब हो गया ना, ये लुग़वी कहाँ हुआ? लेकिन इस्तिलाही शरी और गैब के अंदर फर्क तुझे मालूम है लुग़वी किसे कहते हैं? गवार कहीं क्या? ये देखो, इसको लुग़वी तक नहीं मालूम, इसको ये तक नहीं पता लुग़वी किसे कहते हैं, और मुझसे जाहिल गवार कह रहा है। अच्छा, लुग़वी किसे कहते हैं? लुग़वी के मायने बता। तुझे इस्तिलाही शरई माना पता है ना, उसके मुखालिफ में जो इल्म गैब। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, तू लुग़वी बता कि लुग़वी किसे कहते हैं। तुझे इस्तिलाही शरई का माना बतलाया नहीं? इसने कहा कि अताई इल्म गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, और अजगर कह रहा है कि जर्रा बराबर भी नहीं है।
ये देवबंदियों ने आपस में ही एक दूसरे को काफिर ठहरा दिया। तो जैसा कि भाइयों आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना, इसमें इन्होंने कितने रंग बदले ये आपने देखा होगा। खैर आप लोगों से कहना है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।